Hello guys, once again you are welcome to our English class, and here we are learning our sixth chapter. Sixth chapter and fifth chapter, the both name the same, but the difference is that fifth chapter is the part 1 of 100 dresses and sixth chapter is the part 2 of 100 dresses. So now we are going to learn our sixth chapter. Earlier we have learned something about the chapter that a girl Vanda Petronsky, who was a Polish girl, now live in Boginside, and she sat in the corner of the room number 13 in the last second bench. ठीक है. And why did she sat there? Nobody know, but she has one of the quality that she is a very good painter, and she drew 100 dresses, due to which she won the drawing contest. And in due to this winning contest, all the other girls as well as the girls um, who tried to taunt her also praise her because of this talent only. Okay, so now we have learned that Vanda Petronsky and the family had gone somewhere else in a new big city. Why they have gone there? Because they had the thinking that there in the big city, different big names, strange names, so nobody there would make fun of their strange and weird names. In this series we are now going to introduce this part. So in this lesson, the author teaches us a lesson that we should not hurt anybody's feelings. All the girls in the school made fun of Venda. We came to know it already. Yes, that she was a Polish girl, and everybody made fun of Venda because they thought that she was a dumb cow. She could not understand that they were making fun of her. Uh, as a result, she had left the school. Then the feeling of repentance arose among the students who teased Venda. But when she had gone, they came to know about the talent the Venda Petronsky had. That's why they now had the repentance in them, and they now want to just say sorry to her. But the time has gone. She had left the city. Okay, but the two girls, Peggy and Maddie, they wanted to stop her from leaving the place. That's why they went there and they tried to say sorry to the girl. But when they went there, when they didn't find anybody there, they had no other way just to feel the repentance. Okay, now what they did, just they wrote a letter. Just try to say sorry to Vanda Petronsky, but the letter changed into a friendly letter. They only praised Vanda Petronsky. Okay, they only asked her whether she liked her new school, whether she had liked her friends or not, all this one, but didn't have any word to say sorry. But she also says Merry Christmas to all of them, and also Venda Petronsky, and also presents gift of her drawing to Peggy and Maddie especially. In this way, we came to know that both Peggy and Maddie received the gifts at Christmas from Venda Petronsky, which clearly shows that the girl had forgiven them. There were no ill will in the girl Vanda Petronsky regarding two of the most popular girl of the school, Peggy and Maddie. Okay, so now let's just read the theme of the story. It becomes rather difficult for the poor immigrant like Vanda Petronsky to adjust herself in an environment which is not very conducive to her. It means that here the conditions has been tried to show that the life of the immigrant who came from the other country to live somewhere else, their life was very difficult and was very strange in a country. And just like the Vanda Petronsky, she had also some problems. She could not adjust herself in the environment of the city in America. But however, Vanda Petronsky rises above all these petty consideration because she has the talent, but she shows her talent by not saying anything to anybody, but she shows the talent by showing her talent of drawing 100 dresses. Okay, she still loves the previous school and the previous classmates. It means she is very generous, she is very kind, she is very talented girl, and she donate her 100 drawing to all the other girls, all the other classmates of her classroom. She has no ill will feelings towards Peggy, who used to tease her by putting embarrassing question regarding her dresses. She also allows Peggy to have the drawing of green dress and Maddie the blue one. So you have to remember which gift she sent to
Peggy and Maddie. She gave Peggy the drawing of green color dress, and to the Maddie she gave the blue dress, drawing of blue dress. Okay. So, however, the damage has been done. It means what the girl want to say to Venda Petronsky, that they are feeling very guilty, that they are feeling very sorry. Now, their wish has been granted by the God, that Venda Petronsky has forgiven them, because now she has given them the gift and shows that they had been forgiven. In his letter to Miss Mason, Venda's father clearly mentions, but earlier we came to know that Venda's father clearly told Miss Mason that they were moving from the city because their children were made fun by the other students. Okay, but now they were admitted to a new school. It means there is a very clear message. Okay, and any kind of discrimination, it means he wanted to say that their children had to undergo a lots of discrimination and torture, and they had to suffer it very silently, but now they wanted to get rid all of this, and they had shifted to a new city. Okay, so this is the theme of the chapter. Now there are some of the difficult word meanings that you have to keep in mind. Circling means moving round. It means गोल गोल घूम के हर जगह देखना. Thoughtfully, thinking deeply. Shuffling, making sound of the foot while walking. Okay. टेंस का मतलब यहाँ पे सिचुएशन में क्या है, टेंस का मतलब वेरी सीरियस, डेलिबरेटली, नोइंगली, इंटेंशनली, जानबूझ के कोई काम करना. इंडिकेटेड का मतलब शो करना कोई चीज़. लिसन क्लोजली, लिसन वेरी केयरफुली. हॉलर का मतलब क्राई लाउडली. पॉलक, अ वेरी बैड नेम, जस्ट टू मेक एंग्री द पॉलिश पीपल, मतलब पॉलिश लोगों के लिए एक तरह की गाली है ये. ठीक है. प्लेंटी का मतलब इनफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ होती है वो प्लेंटी होती है. थॉटलेसनेस, इसका मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करना. अनफॉर्चुनेट, अनलकी होते हैं. स्टूड बाय, स्पॉटेड बाय. क्वाड, हैविंग नो करेज. मीन, विद द बैड मेंटेलिटी. स्टोल अ ग्लांस, इट मीन्स लुक्ड सीक्रेटली, किसी की तरफ चोरी चोरी से देखना. ओके, नजरें बचा के देखना. प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है, शोवी, दिखावा करना. कैजुअलनेस क्या होता है, केयरलेसनेस होता है. ग्लोड का मतलब क्या होता है, बिकम वेरी होपफुल, यानी कि ग्लो कर रहा है थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है. फॉरबिडिंग, वेरी बैड होता है. यहाँ पे फॉरबिडिंग का मतलब क्या होता है, वेरी बैड. वैसे फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, मना करना होता है. ठीक है. ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी वाला, बरसात वाला मौसम. डैम्प का मतलब गीला. डिसमल, उदासी. ग्रफली, वेरी रफली. डम का मतलब हैविंग नो फीलिंग. ठीक है. मूर्ख जो होता है उसको डम बोलते. गी का मतलब एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, यानी कि खुशी की कोई आवाज़ जो होती है वो गी होता है. विश्व का मतलब क्या होता है, पीसेस, टुकड़े होते हैं. पाथवे, फुटपाथ. किटन्स कौन होते हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं. शेबी, सिंपल बट चीप, सस्ता लेकिन चीप होता है. आई मीन टू से सिंपल लेकिन चीप होता है. मेक अमेंड्स का मतलब गलतियां सुधारना. ठीक है, सुलह करना होता है. पैचअप. प्रोबेबली का मतलब क्या होता है, परहैप्स, शायद. मेल्ड का मतलब सेंड बाय द पोस्ट, कोई चीज़ पोस्ट करना. डिफेंडिंग, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना. टीज का मतलब चिढ़ाना, किसी को मुसीबत में डालना. डेकोरेटेड यानी कि ब्यूटीफुल बनाना, उसको सजाना. गिफ्टेड का मतलब टैलेंटेड होता है. इंटेंटली मतलब स्वीट अटेंशन, मतलब एकदम से. विद द अटेंशन मतलब एकदम से कोई ध्यान दिलाना होता है. इंटेंटली, बड़े ध्यान से कोई काम करना होता है. ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, डेकोरेट करना, उस पर लेस मोती वगैरह लगा के उसको सजा देना होता है. डेकोरेट कर देना क्या होता है, ट्रिमिंग होता है. रीड्स क्या होती है, गार्लैंड्स होती हैं. होली, HOLLY, होली क्या होता है, एक प्लांट होता है. लेकिन HOLY क्या होता है, बोलो, होली है ना, हॉलीडे होता है ना, छुट्टियाँ. हाँ. और HOLI क्या होती है, हमारे एक त्यौहार होता है. ग्रोसरी किराने की दुकान होती है. स्टैक्ड, कोई चीज़ अपने अंडर में रखने का मतलब क्या होता है, स्टैक्ड होता है. कैंडी, कोई स्वीट होती है, कोई मिठाई होती है. कॉर्नुकॉपियस का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव प्लांट होता है. डेकोरेटिव बाल्टियाँ होती, सजावटी बाल्टियाँ होती हैं जो कि क्रिसमस पे, जिसमें हम फूल मिठाइयाँ वगैरह सजाते हैं. ठीक है. शाइनी का मतलब वेरी ब्राइट. रिफ्लेक्टेड, जो चमकती हैं, जो चीज़ें रिफ्लेक्शन देती हैं. ब्रिलियंसी मतलब वेरी ब्राइट हैं. ओके. ब्लर्ड का मतलब दैट इज़ नॉट क्लियर. गेज, लुक वेरी इंटेंटली. विविड का मतलब वेरी क्लियरली. स्टॉलिडली, टू से समथिंग विदाउट एनी फीलिंग, बिना कोई फीलिंग के, बिना कोई महसूस किए बिना धीरे से बोल देना होता है. ओके. सो दिस इज गोइंग टू बी योर समरी of the part 2. So as the chapter starts, we find that the teacher received a letter from Venda's father. तो उस लेटर में होता क्या है,
She means Miss Mason. Miss Mason received the letter and she read it several times. She studied it thoughtfully. बड़ा गहरी सोच में पड़ जाती जैसे वो उसको पढ़ती है. Then she read the letter to the class. फिर क्लास को वो लेटर पढ़ के सुनाती है. Venda's father clearly made it clear that both his children, Venda and Jack, would not come to their previous school anymore. उसके फादर ने बड़ा साफ साफ बता दिया कि अब उसके दोनों बच्चे वेंडा और जैक, जैक कौन था? वेंडा का भाई था. हाँ, ये दोनों ही अब स्कूल में नहीं आएंगे. दे वुड नॉट बी इंसल्टेड फॉर हैविंग देयर फनी नेम. अब क्यों नहीं आएंगे? रीज़न बता रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके फ़नी नेम की वजह से वहाँ पे कोई उनका इंसल्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि अब वो एक बिग सिटी में जा रहे हैं, बड़े शहर में भी जा रहे हैं. ठीक है. एज दे फेस इट इन देयर प्रीवियस स्कूल, क्योंकि प्रीवियस स्कूल में, हाँ, जिसमें अभी वेंडा गई थी जिस स्कूल से, उसमें सभी ने उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है. उसके बाद क्या कहा गया है? डीप साइलेंस इन द क्लास. एज ऑल ऑफ द स्टूडेंट हर्ड द लिसन द लेटर वेरी केयरफुली, दे रिमेन्ड क्वाइट साइलेंट. ओके. मिस मैसन स्पॉक इन ए वेरी लो वॉइस. बड़े धीरे धीरे धीमी आवाज़ में मिस मैसन बोलती हैं. शी विश दैट नन ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल इन रूम नंबर 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीबडी फॉर हैविंग अ लॉन्ग एंड अनफेमिलियर नेम. अब मिस मैशन चाहती है कि इतने अच्छे बच्चे हैं रूम नंबर 13 के, तो वो चाहती हैं कि किसी बच्चे ने भी जानबूझ करके या किसी उद्देश्य से तो किसी का मजाक नहीं उड़ाया है, चाहे किसी का अनफेमिलियर नेम ही क्यों ना हो. बट वो सेड इन थॉटलेसनेस. तो जो भी उन्होंने कहा, जो भी मजाक उड़ाया, वो सब बिना विचारे ही बोला है, कोई मकसद नहीं था. इट वॉज ए वेरी अनफॉर्चुनेट एंड सैड थिंग दैट वेंडा हैड टू फेस सच अ सिचुएशन. तो वो कहते हैं बड़े दुर्भाग्य की बात थी, बड़ी ही उदासीपूर्ण बात थी कि वेंडा पेट्रोन्स्की को ऐसी सिचुएशन का फेस करना पड़ा, ऐसी सिचुएशन उसको झेलनी पड़ी. उसके बाद हमें क्या कहा गया है नेक्स्ट पार्ट में कि मैडी हैड सिक फीलिंग्स. ये सब हो चुका है. वेंडा पेट्रोन्स्की का जो फादर है उन्होंने क्लियरली हिंट दिया है कि वी आर गोइंग टू अ बिग सिटी. तो ये सब सुन के सबसे जो बुरा हाल था, सबसे जो बुरी फीलिंग्स आ रही थी, वो किस में थी? मैडी में आ रही थी. शी वॉज हाईली डिस्टर्ब हो चुकी थी. शी कुडंट पुट हर माइंड ऑन द लेसन. वो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा पा रही थी. शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे, बहुत बुरा फील हो रहा था. इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, इट्स अ फ्रेज बेटा. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? अपने मन में, अपनी इनर मोस्ट कॉन्शियसनेस में. शी कॉज्ड हर सेल्फ फॉर रिमेनिंग साइलेंट व्हेन पैगी टीज वेंडा पेट्रोन्स्की. वो अपने आप को कोसती है कि क्यों वो चुप रही जब वेंडा पेट्रोन्स्की को पैगी चिढ़ा रही थी. शी ओनली स्टूड बाई साइलेंटली एंड सेड नथिंग. उस समय वो क्या करती थी? शी सेड नथिंग. शी डिडंट प्रोटेस्टेड एट दैट टाइम. इट वॉज एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन. सो नाउ शी थॉट दैट रिमेनिंग साइलेंट टुवर्ड्स एनी क्राइम इज इक्वली कमिटेबल एज द कमिटिंग अ क्राइम. ठीक है. यानी कि कोई भी क्राइम करना, उसको सहना, दोनों ही एक समान पनिशेबल हैं. ठीक है. शी वॉज नथिंग लेस देन अ क्वार्ड. वो सोच रही है कि सिर्फ वो एक कायर लड़की और कुछ नहीं है. शी पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़. वो अपने आप को वेंडा की जगह रोकती है. शी डिसाइडेड टू फाइंड वेंडा. और क्या सोचती है? चलो वेंडा को ना ढूंढ निकालूंगी और माफ़ी मांगूंगी. इट वॉज पॉसिबल दैट शी हैड नॉट लेफ्ट द बोगिन साइड येट. हो सकता है वो ना भी गई हो. पैगी भी कुछ कुछ ऐसा ही सोच रही थी, इसलिए दोनों लड़कियों से मिलने के लिए बोगिन साइड पे चली जाती हैं. ओके. सो नाउ क्या होता है? बोगिन साइड पे जाती हैं. सो द टू गर्ल्स सेट आउट फॉर द बोगिन साइड, द प्लेस वेयर वेंडा पेट्रोन्स्की यूज्ड टू लिव. ठीक है. वहाँ पे जाती हैं. पैगी फील्ड दैट शी हैड नेवर कॉल्ड. अब यहाँ पे देखिए, पैगी नाउ गेव अस द एक्सक्यूजेज दैट इज शी हैड नो डन एनीथिंग रॉन्ग. तो देखो पैगी किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है. सो पहली बात तो क्या बोलती हैं कि शी हैड नेवर कॉल्ड वेंडा एज अ फॉरनर. कभी भी उसको फॉरनर नहीं बुलाया उसने. एंड नेवर शी मेड फन ऑफ हर नेम. और ना कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया. दो तो ये बातें बता दी. शी थॉट दैट वेंडा वॉज टू डम. और क्या बोली कि मुझे लगा कि वेंडा मूर्ख है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. शी प्रेज्ड हर ड्राइंग स्किल्स. वो उसके ड्राइंग स्किल को बहुत ज़्यादा प्रेज करती हैं. एट लास्ट दे रीच वेंडाज हाउस. और ऐसा सोचते सोचते वो सब वेंडा घर पे पहुंच गई है. लेकिन वेंडा के घर पे तो कोई भी नहीं है. और वो घर उसको वेंडा की ही याद दिला रहा है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल शेबी प्लेस बट क्लीन एज हर ब्लू ड्रेस. ठीक है. सिंपल सा, चीप सा तो है, सस्ता सा, सीधा साधा घर तो है उसका, कोर्टयार्ड तो है, लेकिन बिल्कुल साफ है. उन्होंने कई बार दरवाजे को खटखटाया लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं. इसका मतलब पेट्रोन्स्की तो जा चुके हैं. सो पैगी सेड दैट इफ़ शी हैड नॉट आस्क्ड वेंडा अबाउट ऑल हर ड्रेसेस. अब ये देखिए, पैगी एक और एक्सक्यूजेस ढूंढ रही हैं कि अगर मैंने वेंडा से उसके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछा होता, शी वुड हैव नो आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग. तो उसे तो अपनी ड्राइंग के बारे में कोई आइडिया आने ही नहीं थे.
है ना। इसका मतलब अगर वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती है तो भी उसके लिए कौन जिम्मेदार है इनडायरेक्टली, पैगी। वो कहती है मैं उसे ड्रेस के बारे में पूछती थी, इसलिए उसके दिमाग में नए नए आइडिया आते थे और इसी वजह से वो जीत गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ कौन देती है, पैगी। इसका मतलब इंसल्ट तो उसे भी फील हो रही है कि हाँ उसने उसको हर रोज़ रुलाया, उसकी इंसल्ट की है, लेकिन लेकिन अब वो अपने आप को बचाना चाहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी रॉन्ग नहीं किया है, बल्कि वो अपनी हर तरीके से प्रेज़ करती है। Okay, now Maddie resolves, but there were the sick feelings in the very bottom of her stomach. That's why Maddie decided something. ठीक है। Maddie thought about Venda, blue dress and the little house she had lived in. उसकी नीली ड्रेस, घर, वेंडा, सब के बारे में सोचती और एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचती है। She was not going to stand by and say nothing again. अब वो कह रही है कि अब जब जो उसने पहले नहीं किया था, मतलब चुपचाप खड़ी रही थी, कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब वो किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, यानी वन इंसल्टिंग अदर्स, जो दूसरों की इंसल्ट करता है, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और हैड अ स्ट्रेंज नेम्स। चाहे वो पर्सन कितना भी फनी लुकिंग क्यों ना हो, चाहे उसका कितना भी स्ट्रेंज नेम क्यों ना हो, शी वुड अपोज इनजस्टिस इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। वो उसका अपोज करेगी, विरोध करेगी, चाहे पैगी की दोस्ती ही क्यों ना टूट जाए। तो जब वेंडा पेट्रोन्स की उनको मिलती नहीं है तो वो दोनों क्या करती है, एक लेटर लिखती हैं। ठीक है, लेटर के जरिए उनसे माफ़ी मांगती हैं। दे रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। तो देखो क्या क्या लिखती हैं, सिर्फ लिखती हैं कितनी अच्छी उसकी ड्राइंग्स हैं। दे आस्क्ड इफ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेस एंड न्यू टीचर, नई जगह नई टीचर के बारे में पूछती हैं। दे वॉन्टेड टू फील सॉरी बट दे एंडेड अप विद राइटिंग जस्ट ए फ्रेंडली लेटर। सॉरी भी बोलना चाहते हैं लेकिन सॉरी नहीं लिखा, सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर जिसमें सिर्फ फ्रेंडशिप की बातें पूछी गई थी, ये बोल के उसको बंद कर देते हैं। अब काफ़ी दिनों तक रिप्लाई तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, अब जो पैगी है वो तो बातों को लगभग भूल चुकी है, लेकिन मैडी बिल्कुल नहीं भूली है बातों को। तो एक दिन क्या होता है, क्रिसमस की छुट्टियों से एक दिन पहले उनको एक लेटर मिलता है वेंडा की तरफ से। हाँ, मिस मैसन को ही मिलता है। ठीक है, ये वेंडा पेट्रोन्स्की ने लिखा था एंड शी विश दैट द गर्ल ऑफ द रूम नंबर 13 कुड कीप दोज 100 ड्रेसेस। ये लिखा कि रूम नंबर 13 की लड़कियां वो 100 की 100 ड्रेस रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि शी हैड अ न्यू 100 ड्रेसेस इन अ न्यू हाउस। नए घर में और नई 100 ड्रेस उसने बना ली हैं। शी लाइक पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस एंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। वो चाहती है पैगी रखे ग्रीन कलर की ड्रेस को और मैडी रखे ब्लू वन को। शी रॉट दैट शी मिस द स्कूल, हर न्यू टीचर डिडंट इक्वलाइज मिस मैसन। वो कहती है कि मैंने अपने नए जो पुराना स्कूल है बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उसको, और उसका नए टीचर कभी भी मिस मैसन की जगह नहीं ले सकते हैं। लास्ट में दोनों लड़कियों को पता चलता है कि वेंडा पेट्रोन्स्की लाइक्ड पैगी एंड मैडी। कैसे पता चला? बिकॉज इन हर रिप्लाई लेटर देयर वॉज नो इल फीलिंग्स इन द लेटर। कोई इल विल फीलिंग्स नहीं है उनके बीच में। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक था। मैडी को तो बड़ा सैड फील हो रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि शी वॉज नॉट एबल टू सी दैट पॉलिश गर्ल अगेन, दोबारा नहीं देख पाएगी उसको। इसीलिए उसने अपनी ड्राइंग को वॉलपेपर में लगाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बट व्हेन शी लुक वेरी इंटेंटली, जब ध्यान से देखा उस ड्राइंग को तो पता चला कि वो जो ब्लू कलर की ड्रेस है उसमें रियलिटी में ही मैडी का फेस है। ठीक है, और इसीलिए वो भागी भागी पैगी के पास जाती है, उसको कहती है कि पैगी लुक, देवर द पिक्चर, देवर द हेड ऑफ यू एंड मी ऑन द पेंटिंग। तो देखा कि वाकई में ही रेड कलर की पेंटिंग पे पैगी का फेस बना हुआ था और ब्लू वन पे मैडी का। तो इस बात से लड़कियों को पता चला कि वेंडा पेट्रोन्स्की ने कभी भी उनको हेट नहीं किया, हमेशा उनको ही पसंद करती थी। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द समरी। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव द प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।